السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، غیر مقلدین فرقہ آئے دن فقہ حنفی کے کسی نہ کسی مسئلے پر اعتراض بھی کرتے ہیں اور کسی نہ کسی عبارت پر اعتراض کرتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے سامنے فقہ حنفی کی ایک ایسی عبارت آپ کے سامنے رکھیں گے، ایسا مسئلہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جس پر غیر مقلدین نے اعتراض کیا ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا مسئلہ ہے جس پر غیر مقلدین کا اعتراض ہے اور وہ اعتراض کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو اس کا جواب بھی سامنے پیش کریں گے۔ اگر اب آئیے، کتاب دوسری ہے فقہ حنفیہ کی رد المختار علی در مختار، اور ہاں اس کو دیکھ لیجئے، فی فقہ مذہب الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان، کہ یہ فقہ حنفیہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق کتاب ہے۔ اس کا چھپی ہوئی کوئٹے کی صفحہ نمبر 153 ہے، 153 اور صفحہ نمبر 152، تھوڑا سا پہلے وہ بھی سن لے۔ وَعَلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ الْكَلْبُ بِنَجْسِ الْعَيْنِ، کتا جو ہے یہ عین پلیت نہیں ہے، خود پلیت نہیں ہے، نجس عین نہیں ہے۔ عند الامام وعلیہ الفتویٰ، ہمارے امام صاحب کے نزدیک اور فتویٰ بھی اسی کے اوپر ہے، یہ پلیت نہیں ہے، پلیت فقہ حنفی کی بات کر رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 152 اور جی سامعین کرام، غیر مقلدین کے نام نہاد مولوی عبد الرحمن شاہین کی بات آپ نے سن لی کہ کس طرح لوگوں کو مغالطہ دے رہا تھا اور کس طرح عوام کو دھوکہ دے رہا تھا۔ آئیے پہلے ہم آپ کے سامنے عبارت پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جی ناظرین، یہ دیکھیے، یہ عبارت ہے، اس کا صفحہ نمبر 208 ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ الْكَلْبُ بِنَجْسِ الْعَيْنِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى۔ اب نام نہاد غیر مقلد مولوی شاہین کا لیس الکلب بنجس العین عبارت پڑھنے کے بعد یہ حق بنتا تھا کہ وہ اس کے خلاف ایک حدیث رسول پیش کرتا کہ کتا نجس العین ہے، چونکہ ہمارے نزدیک کتا نجس العین نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا اور سنا کہ غیر مقلد مولوی نے ایک حدیث بھی پیش نہیں کی اس کے خلاف کہ کتا نجس العین ہے۔ ہم تمام غیر مقلدین کو چیلنج کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں ان سے کہ ایک حدیث پیش کریں جس پر یہ ہو کہ کتا نجس العین ہے۔ اب آپ نے جب یہ حدیث پیش نہیں کی تو سمجھ لیجئے کہ یہ مسئلہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، نہ کہ اس کے خلاف ہے۔ دوستو عزیز ساتھیوں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے یہ بات بیان کی کہ خنزیر احناف کے نزدیک نجس العین ہے، یعنی اس کی کھال چمڑا دباغت دینے کے بعد بھی پاک نہیں رہتا، پاک نہیں ہوتی، وہ بدستور نجس ناپاک پلید ہی رہتی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 204 میں مصنف نے اس کو بیان کیا۔ لیکن کتا چونکہ ہمارے نزدیک نجس العین نہیں ہے بلکہ نجس الغیر ہے۔ نجس العین اور نجس الغیر یہ اس کو کہتے کس کو ہیں، یہ ہم آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ خنزیر نجس العین ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں جو چیز اصل سے ناپاک ہو اس کو نجس العین کہتے ہیں، یعنی وہ خنزیر نجس العین ہے، پیشاب پاخانے کی طرح اندر اور باہر سے نجس ناپاک پلید ہے، اور دوسرے حرام جانور نجس الغیر ہیں، یعنی ان کی ذات پیشاب پاخانے کی طرح نجس نہیں ہے بلکہ ان کی ذات اور اوپر والا ان کا جو جسم ہے وہ بالکل پاک ہے، لیکن اندرونی رطوبات نجس ہیں۔ جب تک اندر والی نجاست کا اثر جسم کے اوپر ظاہر نہ ہو تو وہ جسم شریعت اور اسلام کی روح سے پاک شمار کیا جائے گا۔ اسی اعتبار سے انسان اور دوسرے حلال جانوروں کا بھی یہی حکم ہے کہ انسان پیشاب اور پاخانے کا توشہ اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، لیکن اوپر والا جسم اس کا پاک ہوگا۔ جب تک اندر کا پیشاب اور پاخانہ اس کے جسم کے اوپری حصے میں، ظاہری حصے میں نہیں لگتے تو اس جسم کو پاک شمار کیا جائے گا۔ جب وہ چیز جسم کے اوپر نجاست لگ جاتی ہے تو اس جسم کو ناپاک شمار کیا جائے گا۔ عزیز دوستوں، فقہائے کرام نے فقہ میں کتے کی نجس العین ہونے کی نفی کی ہے، نہ کہ نجس ہونے کی۔ اب یہ اس کو یوں سمجھ لو کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں گائے اور بیل بڑے جانور کا گوشت نہیں کھاتا، تو اس سے بکری اور دمبے کے گوشت کھانے کی نفی نہیں ہے، بلکہ وہ اس نے جو نفی کی ہے
वो इस तौर पर नफ़ी की है कि मैं गाय और बैल का गोश्त नहीं खाता, ना कि इसने ये कहा हो कि मैं बकरी और दुम्बे का गोश्त नहीं खाता। इसको मज़ीद यूँ समझ लो कि एक शख्स कहता है कि मैं गर्म दूध मैंने नहीं पिया, तो गर्म दूध पीने की नफ़ी है, ना कि दूध पीने की नफ़ी है। दूध पीने की नफ़ी नहीं की, गर्म दूध पीने की नफ़ी की। इसी तरह फुक़हा कराम फरमाते हैं कि यहाँ पे कुत्ते के नजसुल ऐन होने की नफ़ी है, ना कि नजस होने की। अब अजीज़ साथियों, अंदरूनी नजासत का जो असर है वो दो सूरतों पर जिस्म में ज़ाहिर होता है। नंबर एक, मौत के बाद। नंबर दो, अंदर से निकल कर जिस्म पर बाहर लग जाए। अब नाम नहाद मौलवी शाहीन को नजसुल ऐन और नजसुल गैर का फ़र्क मालूम नहीं तो उसकी अकल का कसूर है, उसकी कम अकली है, उसकी कम फाहमी है, नासमझी है। हमारे नज़दीक चूँकि कुत्ता नजसुल ऐन है, कुत्ता नजसुल ऐन नहीं है। हम सही बुखारी की इस हदीस से जो हम आपके सामने पेश करेंगे, इसी से हम इस्तेदलाल करते हैं। जी सामीन और नाज़रीन कराम, ये है तहसीरुल बारी शरह तर्जुमा व तशरीह सही बुखारी। ये इमाम अहले हदीस अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब की है। इसका जिल्द 1 सफ़ा 135 है। इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस नकल करते हैं, इमाम अहले हदीस इसका तर्जुमा करते हैं। हमज़ा बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि उन्होंने अपने बाप अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना। उन्होंने कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में कुत्ते मस्जिद में आते जाते, यानी मस्जिद नबवी में, क्योंकि दरवाज़ा और हिसाद न था, फिर वहाँ किसी जगह पर पानी नहीं चढ़कते थे। हम इस हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला साबित करते हैं कि कुत्ता नजसुल ऐन नहीं है। अब नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में सबसे मुबारक जगह, दुनिया में सबसे मुबारक जगह मसाजिद हैं। उन मसाजिदों में कुत्ता आते थे, मस्जिद नबवी में कुत्ता आते जाते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उस पर पानी वगैरह नहीं चढ़कते थे। हम इस हदीस से कुत्ते के नजसुल ऐन ना होने की इस्तदलाल और मसला साबित करते हैं। अगर कुत्ता नजसुल ऐन होता तो ज़रूर उसको मना किया जाता। अब आइए देखते हैं कि इमाम अहले हदीस इसके फ़ायदे में क्या लिखते हैं। ये तहसीरुल बारी तर्जुमा तशरीह सही बुखारी है, इसके सफ़ा नंबर 136 है। फ़ायदा नंबर 1, इमाम अहले हदीस लिखते हैं कि इस हदीस से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कुत्ते के पाक होने पर दलील ली है, क्योंकि उसके मौज़े में कुत्ते ने पानी पिया। हालांकि हदीस में यह मज़कूर नहीं है कि उसने अपना मौज़ा धोया या उसको पाक किया। अब इसके बाद नंबर 2, फ़ायदा नंबर 2 में जो हदीस हमने बयान की जिससे हम इस्तेदलाल करते हैं, उसी हदीस के बारे में ये तशरीह करते हैं इमाम अहले हदीस अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब। क्या लिखते हैं, इसको पाक करने के लिए एक रिवायत में है कि कुत्ते मस्जिद में पेशाब भी करते, अगर कुत्ता नजस होता तो रात दिन मस्जिद को पाक करते रहते। अब देखिए मोहतरम सामीन कराम और नाज़रीन कराम कि गैर मुक़ल्लिद आलिम अल्लामा वहीदुज़्ज़मान इमाम अहले हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मसलक बता रहे हैं कि उनके नज़दीक कुत्ता नजसुल ऐन होना तो दूर की बात, नजस होना भी दूर की बात, बल्कि उनके नज़दीक तो बिल्कुल पाक है। इमाम बुखारी के नज़दीक कुत्ता बिल्कुल पाक। अब नंबर 2 में हम आपको दिखाते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मसला, कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कुत्ते के पाक और नापाक होने पर क्या मसला है। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फ़तहुल बारी सफ़ा नंबर 366 जिल्द 1 में ये लिखते हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और मालिकिया का मसलक नकल करते हैं लिकौनिल कल्ब ताहिरन इंदहुम, कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और मालिकिया के नज़दीक कुत्ता पाक है। चूँकि कुत्ता उनके नज़दीक पाक है, इसी मसले को बयान करते। नंबर 3, अल्लामा शम्सुल हक अज़ीम आबादी गैर मुक़ल्लिद आलिम है। वो अबू दाऊद की मुख्तसर शरह गायतुल मक़सूद फ़ी शरह सुनन अबी दाऊद सफ़ा नंबर 255 जिल्द 1 में इसी बात को नकल करते हैं लिकौनिल कल्ब ताहिरन इंदहुम। मालिकिया के नज़दीक चूँकि कुत्ता पाक है, वो इसी बात को नकल कर रहे हैं। अब दोस्तों अजीज़ साथियों, गैर मुक़ल्लिदीन ने फ़िक़्ह हनफ़ी की दुश्मनी में वीडियो भी बना दिया और फ़िक़्ह हनफ़ी के ख़िलाफ़ बातें भी की, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो कि उनके नज़दीक कुत्ता पाक है, नापाक होना भी तो दूर की बात, नजसुल ऐन होना भी दूर की बात, बल्कि उनके नज़दीक पाक है, लेकिन आज तक उन्होंने इसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं क्यों नहीं की, चूँकि इनको फ़िक़्ह हनफ़ी से ही दुश्मनी है। आइए अब देखते हैं कि गैर मुक़ल्लिदीन के नज़दीक कुत्ते के बारे में क्या मसला है, पाक और नापाक होने के एतबार से हम उस पर गुफ्तगू करते हैं। ये है हवाला नंबर 4, नुज़ुलुल अबरार मिन फ़िक़्ह नबील मुख्तार,
नेकोकारों की मेहमानी पसंदीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िक़ा से। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िक़ा है, गैर मुक़ल्लिदीन इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िक़ा इसको कहते हैं। इसी के अंदर लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 49 जिल्द 1, वख्तलफ़ू फ़ी लुआबिल कल्बि वल खिंज़ीर वसुरहिमा अल अर्जहु तहारतुहु। कहते हैं कि इख्तलाफ है कुत्ते और खिंज़ीर के लुआब के बारे में और उनके झूठे के बारे में कि वो पाक है या नापाक। कहते हैं सही और राजिह बात यही है कि पाक है। कुत्ते और खिंज़ीर का झूठा और कुत्ते और खिंज़ीर का लुआब दोनों पाक है। इसी तरह हवाला नंबर 5 नुज़ुलुल अबरार सफ़ा नंबर 50 जिल्द 1 के अंदर व कज़ालिका फ़ी बौलिल कल्बि व ख़ुरई वल हक़्क़ु अन्नहु ला दलील अलन नजासते। कहते हैं इसी तरह पेशाब, कुत्ते के पेशाब और पाखाने के हवाले से भी इख्तलाफ है कि पाक है या नापाक है, लेकिन हक़ और सही बात यह है कि इसकी नजासत और इसके नापाक होने पर कोई दलील नहीं है। हवाला नंबर 6 नुज़ुलुल अबरार सफ़ा नंबर 30 में ये लिखते हैं कि शारुल मैतते वल खिंज़ीर ताहिरुन। कहते हैं मुर्दार और खिंज़ीर का जो बाल हैं वो पाक हैं। इसी तरह उसकी अड्डी, उसके पट्टे, उसका खुर, उसकी सींग वगैरह सब पाक हैं इनके नज़दीक। इसी तरह हवाला नंबर 7 अरफुल जादी सफ़ा नंबर 10, इसमें कुत्ते, मुर्दार और खिंज़ीर का ज़िक्र करने के बाद लिखते हैं, आखिर में बयान करते हैं कि अर हराम नजस नहीं और अर नजस हराम नहीं होता। यानी इनके नज़दीक कुत्ता, खिंज़ीर और मुर्दार बिल्कुल पाक हैं। तो मोहतरम सामीन कराम, ये वो लोग हैं जिनके नज़दीक कुत्ता भी पाक। खिंज़ीर के बारे में तो कुरान में अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया फ़इन्नहु रिज्सुन कि वो नापाक है। लेकिन गैर मुक़ल्लिद कहते हैं हमारे नज़दीक चूँकि कुत्ता नजसुल गैर है, लेकिन खिंज़ीर के हवाले से हम हनाफ कहते हैं कि खिंज़ीर का अर जुज़, उसके बाल, उसके खुर, उसकी हड्डियाँ, उसका सब कुछ नापाक है, चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल वाज़ेह नस में फ़रमाया फ़इन्नहु रिज्सुन। लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन के नज़दीक उनका लुआब, कुत्ते और खिंज़ीर का लुआब और उसका झूठा बिल्कुल पाक है। इसी तरह कुत्ते का पेशाब और पाखाना बिल्कुल पाक है, इसके नापाक होने पर कोई दलील नहीं। फिर इसी तरह कुत्ते और खिंज़ीर के बाल और उसकी हड्डियाँ, उसके पट्टे, उसका खुर, उसका सींग सब कुछ पाक है इनके नज़दीक। और इसी तरह अरफुल जादी का हवाला है कि खिंज़ीर भी पाक, कुत्ता भी पाक, मुर्दार भी पाक। तो अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, एतराज़ तो फ़िक़्ह हनफ़ी पर इस मसले पर वो हज़रात करें कि जिनके नज़दीक कुत्ता नजसुल ऐन है, जिनके नज़दीक कुत्ता नजसुल ऐन है। इनके नज़दीक कुत्ता तो नजसुल ऐन भी नहीं, नजस भी नहीं, पाक है। और पाक होने के बाद भी कुत्ते का पेशाब भी पाक, पाखाना भी पाक और उनका लुआब भी पाक, उनका झूठा भी पाक। खिंज़ीर का लुआब पाक, खिंज़ीर का झूठा पाक, खिंज़ीर के बाल पाक और खिंज़ीर की हड्डियाँ और उनका खुर, उनके पट्टे, उनके सींग वगैरह सब कुछ इनके नज़दीक पाक है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, इनको चाहिए कि इस पर एतराज़ ना करें। अब अगर हम इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई गैर मुक़ल्लिद बाल्टी भर कर खिंज़ीर के ऊपर डाल दे और नीचे से गिलास भर कर पानी पी ले तो भी कोई हरज नहीं। इसी तरह अगर खिंज़ीर और गैर मुक़ल्लिद बारी बारी किसी स्विमिंग पूल में गोता लगाएं तो खिंज़ीर भी पाक है, गैर मुक़ल्लिद भी पाक है और पानी भी पाक है, चूँकि इनके नज़दीक खिंज़ीर और इसी तरह कुत्ता पाक है बिल्कुल। तो मेरे मुहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला हमको हक़ बात और सही बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने मसला आपके सामने बिल्कुल बयान कर दिया कि हमारे नज़दीक कुत्ता नजसुल ऐन नहीं बल्कि नजस है, नजसुल गैर है, जिस पर हमने आपको हदीस बयान की और हमारा मसला बिल्कुल हदीस के मुताबिक है। हम फिर भी यही कहते हैं कि एक हदीस पेश करें गैर मुक़ल्लिद कि कुत्ता नजसुल ऐन है, लेकिन इन्होंने ऐसी कोई हदीस पेश नहीं की। अल्लाह ताला हम सबको सही बात समझने की और हक़ बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।